Hello, everyone, and welcome to our YouTube channel of CS Ansar. We have been receiving so many queries about the recent amendment made in Section 44AB through the Finance Act 2020. To solve all your queries, we requested CA Rajiv Jain sir, he has been associated with us for long, to please share his views, his time on the queries, and something about CA Rajiv Jain sir. He's been practicing for more than 30 years in income tax. He has delivered more than 400 lectures, and he's a partner in SSAR and Associates, and has been frequently appearing before the CIT Appeals and Income Tax Tribunal. Totally over to you, sir, for all our queries and issues in 44AB, please. Thank you, Neha ji. First of all, I convey my thanks to CA Vivek Khurana for his tremendous effort. और इस कोरोना काल में तो effort इतना marvelous किया that he has almost covered each and every topic. And for last 2 months, I have not delivered even a single lecture. This is my first outing in the last 2 or 3 months. Rather, I was occupied in spiritual जर्नी और मुझे ऐसा लगा था कि जब तक प्रोफेशनल एक्टिविटी बंद है टिल दैट टाइम वी शुड यूज आवर टाइम टू दोज एक्टिविटीज जिस समय में हमारे पास समय नहीं मिलता या हम सोचते हैं कि इन कामों के लिए समय नहीं मिलता. नाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज और लग रहा है कि कुछ समय में चीजें ठीक हो जाएंगी और वी विल बी आउट ऑफ दिस ट्रबल एंड थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग नॉर्मल. तो मैंने सोचा चलो आज प्रोफेशनल एक्टिविटी में लौट कर वापस आते हैं. और विवेक भाई का जब फोन आया दैट देयर वाज अ रीसेंट अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 44AB which was brought in by Finance Act 2020 and at the time I delivered my budget lecture I was absolutely clear that this was applicable from assessment year 2020-21, but there was some confusion which was created by some tax website which said that it was going to be applicable from assessment year 21-22. But thanks to notification of income tax return forms, that now it's absolutely clear, there is absolutely no doubt that this amendment under section 44AB is applicable from assessment year 2021. यानी कि जो इस साल हम जो मार्च 20 की जो रिटर्न फाइल करेंगे, दिस अमेंडमेंट is going to become crucial और इसका इम्पैक्ट हमें हर एक रिटर्न को तैयार करते समय समझना पड़ेगा whether we are dealing with a non-audit case or an audit case. So what they've done is under section 44AB there is clause A which is that every person whose turnover, sales or gross receipt exceed rupees 1 crore is required to get its books of accounts audited under section 44AB. Now what they've done is they have brought in the proviso under section 44AB clause A which says that if cash transaction of the person are within certain limits, then this tax audit limit will be read as 5 crore instead of 1 crore. And there is another proviso which is at the bottom of section 44AB which says that in case of a persons who are eligible and who declares their income under section 44AD, in that case this limit of 1 crore shall be counted as rupees 2 crore. Now there are so many numbers of permutation combinations now available. अभी बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कब हमारे ऊपर 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी, कब हमारे ऊपर 2 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी, कब हमारे ऊपर 5 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी. तो अब लोगों को ये समझने में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ये 5% की जो लिमिट है कैश ट्रांजैक्शन की, व्हाट दे हैव अमेंडेड इज इन केस ऑफ एन एसएससी if his total cash receipts or total cash payments are within the limit of 5% of the total sales or turnover or gross receipts, then your tax audit limit will be rupees 5 crore. If your cash transactions exceeds 5%, then your tax audit limit will be 1 crore. And in case of 44AD, your tax audit limit will be 2 crore. अब लोगों को एक क्वेश्चन आ गया क्योंकि there is a lot of ambiguity कि how this 5% amount of cash transactions has to be computed. इस 5% में क्या इंक्लूड होगा, क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और टर्नओवर किसको हम काउंट करेंगे. तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इज देयर. तो आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कशन करेंगे विद अ वेरी स्मॉल कैप्सूल एंड विद क्लैरिटी ऑफ माइंड कि कब कब हमारे पास कौन कौन सी सिचुएशंस में और कौन सी टैक्स ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल होगी. एंड
दिस इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर फाइलिंग ऑफ अवर इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ नॉन ऑडिट एसएससी, क्योंकि जहां भी बिजनेस वाला है तो फर्स्ट कॉल वी हैव टू टेक whether it is going to be audited under section 44AB or it is not going to be audited under section 44AB. तो अगर 44AB में ऑडिट नहीं होना तब हमें उसकी रिटर्न विदाउट ऑडिट भरनी है, और 44AB में रिटर्न ऑडिट होना है तो हम उसकी रिटर्न हमें ऑडिट लगा के और 31 अक्टूबर तक हमें उसकी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट फाइल करनी है, राइट। तो बात को समझते हैं। अब हम सारे एसएससीज के दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा हम कर लेते हैं उन एसएससीज का दोज हु आर नॉट एलिजिबल एंड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44AD। 44AD में सिर्फ 3 तरह के एसएससी जा सकते हैं, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप। बाकी लोग 44AD में जा ही नहीं सकते, क्लियर। तो अदर देन 44AD बाकी सबके लिए दो ही लिमिट रहेंगी, या तो 1 करोड़ की या 5 करोड़ की। अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स, अगर आपकी टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स और सेल से अगर 5% से कम है तब आपकी लिमिट होगी 5 करोड़, और अगर आपकी 5% से कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा है तब आपकी लिमिट होगी 1 करोड़, राइट। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ उन एसएससीज की बात करते हैं जो 44AD में नहीं जा सकते, दोज हु आर नॉट अवेलिंग 44AD। तो उनके केसेस में जो आपकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट होगी, दोबारा से मैं क्लियर कर दूं, अगर आपकी टोटल कैश रिसीट्स और काउंट करेंगे, इसको बड़े सिंपल तरीके से काउंट करेंगे। जब हमारे पास एसएससी की बुक्स आई तो हमने उसका कैश अकाउंट निकाल दिया। अब कैश अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आएगा, पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर आया और क्लोजिंग बैलेंस आया, राइट। अब हमारे पास रिसीट साइड आ गई और पेमेंट साइड आ गई। अब हमें अप्लाई करना है कि जो हमारी रिसीट्स है इट शुड बी लेस देन 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर और सेल्स, एंड आवर पेमेंट्स इट शुड बी लेस देन 5% ऑफ द टोटल सेल्स, टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीट्स। और ये दोनों कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई होगी देन आवर लिमिट विल बी 5 करोड़ रुपीस, एज सिंपल एज दिस। अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस खड़े हो गए कि ये जो 5% के लिए जो हमें सेल्स और टर्नओवर काउंट करनी है, ये कैसे काउंट करेंगे। ये टर्नओवर हमारी विदाउट जीएसटी आएगी, विद जीएसटी आएगी, ये किस तरीके से जीएसटी आएगी, किस तरीके से टर्नओवर 5% किसका काउंट करेंगे। तो थिंग्स आर एब्सोल्युटली मेड क्लियर बाय द गाइडेंस नोट इश्यूड बाय आवर इंस्टीट्यूट, विच सेड कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से आपकी ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर आती है, आपको वो वैल्यू मिलती है। एक सर्कुलर है जो आईसीडीएस के लिए निकाला था, सर्कुलर नंबर 10 23 मार्च 2017 का, उसका एफएक्यू नंबर 3 है। उसमें डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब हम जो टर्नओवर लेंगे दैट विल बी इंक्लूडिंग टैक्स। तो अगर मैं इंक्लूडिंग टैक्स वाली टर्नओवर लूंगा और उससे 5% काउंट करूंगा तो आई विल बी एट द बेनिफिट साइड, वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। बट वी शुड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी शुड गो बाय आवर इंस्टीट्यूट्स पब्लिकेशन, और जो हमारी टर्नओवर मेरी बुक्स में आती है एज पर माय अकाउंटिंग पॉलिसी, उस टर्नओवर से मैं 5% काउंट करूंगा, सिंपल। तो ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब दूसरा इशू आया कि जो मेरा रिसीट साइड है, उस रिसीट में मेरे पास बैंक से मैंने कैश विड्रॉ किया, वो कैश विड्रॉ भी आएगा। मैं अगर इंडिविजुअल हूं, एचयूएफ हूं, तो मेरे पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा आया, वो भी मेरा रिसीट साइड पे आएगा। एंड इन द सेम मैनर जो मेरी पेमेंट साइड है, उसमें मैंने अपने पार्टनर को पेमेंट की, मैंने अपने प्रोप्राइटर को पेमेंट की, या मैंने अपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया, ये सारी एंट्रियां मेरी पेमेंट साइड में भी आएंगी। अब इनको किस तरीके से डील करें। लीगली स्पीकिंग, वन पर्सन कैन नॉट मेक ट्रांजेक्शन विद हिमसेल्फ। यहाँ जो सेक्शन का स्टार्टिंग वर्ड है वो एवरी पर्सन है, तो रिसीट जो काउंट होगी और जो पेमेंट काउंट होगी वो अदर देन द पर्सन हिमसेल्फ होगी। यानी उस आदमी से अगर पैसा लेते हैं तो दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज रिसीट, और मैंने अगर अपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज रिसीट्स। यदि मैंने अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया इट कैन नॉट बी काउंटेड एज पेमेंट, राइट। और इन द सेम मैनर अगर मैंने अपने प्रोप्राइटर को विड्रॉल के लिए पैसे दिए, पार्टनर्स को अगर मैंने विड्रॉल के पैसे दिए या रेमुनरेशन के अगेंस्ट उनको कैश पेमेंट किया,
या मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट कैश पेमेंट किया, इस इश्यू को भी थोड़ा सा डील करेंगे कि वेदर दिस विल बी काउंटेड व्हाइल कंप्यूटिंग दिस लिमिट ऑफ 5% और नॉट। तो पहले बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज में देयर इज नो कंफ्यूजन, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी रिसीट साइड है, रिसीट साइड में से जितनी मेरी कॉन्ट्रा एंट्रीज की रिसीट है वो मैं रिड्यूस कर दूंगा। अब मैंने अपना रिकंसिलिएशन बनाना शुरू किया, मेरी जो टोटल रिसीट्स हैं उसमें से जो पैसे मैंने बैंक से विड्रॉ किए हैं वो मैंने उसमें से रिड्यूस कर दिया। अब फिर बात आई कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आया मेरे पास मेरे प्रोप्राइटर से, नाउ कंफ्यूजन इज क्रिएटेड बाय आईटीआर फॉर्म। आईटीआर फॉर्म में जो शेड्यूल बनाया है इन्होंने ऑडिट इंफॉर्मेशन के लिए, वहां पर कहते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड विल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नाउ दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ कि एक आदमी अपनी एक जेब से पैसे निकाल के अगर दूसरी जेब में रखे, इट कैन नॉट बी काउंटेड एज रिसीट ऑफ मनी। रिसीट ऑफ मनी के लिए एक दूसरे आदमी को होना जरूरी है, विच इज अदर देन माई सेल्फ। मैं अपना पैसा खुद से रिसीव नहीं कर सकता। तो इनकम टैक्स की रिटर्न के शेड्यूल के अंदर ये जो भरा गया है, ये जो कॉलम लेकर आए हैं, टू माई माइंड दिस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर यदि प्रोप्राइटर है और प्रोप्राइटर से मेरे पास अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन आया है कैश में, तो उस रिसीट में से वो मैं रिड्यूस कर दूंगा, राइट। तो जो मेरे पास कैश अकाउंट में टोटल रिसीट्स आई उसमें से पहले मैंने कॉन्ट्रा एंट्री हटा दी, राइट। फिर मैंने जो प्रोप्राइटर से पैसे आए मेरे पास या इंडिविजुअल से जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आया वो मैंने उसमें से रिड्यूस कर दिया। जो बाकी जो बैलेंस रिसीट बचा वो मेरी टोटल कैश रिसीट बननी चाहिए। इन द सेम मैनर सेम थिंग विल आल्सो अप्लाई टू माय पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में जो मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए वो मैं रिड्यूस कर दूंगा, और साथ में जो मैंने प्रोप्राइटर को कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अगर कोई पेमेंट की तो वो मैं उसमें से रिड्यूस कर दूंगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू ऑन दिस। अब क्वेश्चन आया पार्टनरशिप फॉर्म्स का, कि पार्टनर्स के केस में अगर हम पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, वेदर इट विल बी काउंटेड एज रिसीट ऑफ मनी बाय द पार्टनरशिप फर्म और नॉट। या पार्टनर को हमने पेमेंट की, इट मे बी ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉल, इट मे बी ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इट मे बी ऑन द अकाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, राइट। ये तीनों पेमेंटें भी हो सकती है और रिसीट भी हो सकती है पार्टनर से। So whether this receipt from partner has to be considered for computing this limit or not, this is the question. देखिए, जो पार्टनरशिप जो गवर्न होती है, it is governed by Partnership Act, and the relation between the partners is in accordance with the Partnership Act as well as your partnership deed. And for the purpose of Income Tax Act, though partnership firm is assessed as a separate assessee, is considered as a person, but in true sense partnership firm is not a legal person per se, वो एक legal entity नहीं होती। and there is Supreme Court judgment, that is CIT versus RM Chidambaram 106 ITR 292. I am repeating the citation, CIT versus RM Chidambaram 106 ITR 292 Supreme Court। वो कहता है कि जो पार्टनर्स को हमने सैलरी दी या पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट दिया, बेसिकली दिस इज अ मेथड ऑफ अपॉर्चनमेंट और शेयरिंग ऑफ इनकम। देयर इज नो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप फर्म, बिटवीन द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म। सो देयर इज नो बोरोवर और लेंडर रिलेशन एज सच बिटवीन द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म। दैट इज व्हाई जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं तो हम 194A में उसका टीडीएस नहीं काटते, राइट। So, अगर इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम पढ़ेंगे तो इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट आई कैन सेफली एट्रीब्यूट एंड से दैट रिसीट फ्रॉम पार्टनर्स एंड पेमेंट टू पार्टनर्स, वेदर इट इज ऑन कैपिटल अकाउंट, वेदर इट इज ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, और वेदर इट इज ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के साथ हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो इस रिसीट में काउंट नहीं हो सकती, राइट। तो अब मेरे रिसीट जो मेरा कैश बुक में जो रिसीट की टोटल आया, कॉन्ट्रा एंट्री हटाई, प्रोप्राइटर से कोई कैश में आया या कैश में पेमेंट किया वो रिड्यूस करेंगे, और साथ में अगर पार्टनर से मेरे पास कोई कैश पेमेंट आई और हमने पार्टनर्स को कोई कैश पेमेंट की तो वो भी टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट को काउंट करने के लिए कंसीडर नहीं करना चाहिए। यू कैन
take your precautionary view. I am only trying to explain the law. तो क्योंकि कई बार हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाके प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ता है, राइट? तो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन भी यहां से निकलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो सामने आया। देयर इज वन ऑफ माय कस्टमर एंड देयर इज आल्सो बी ए वेंडर। अब मेरा वेंडर दिल्ली से बाहर का है एंड मैंने उसके दिल्ली में बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए कैश, राइट? और वो उसके बैंक अकाउंट में दिल्ली में जमा हो गया। आई हैव नॉट मेड एनी कैश पेमेंट डायरेक्टली टू द पर्सन। बात समझ में आ गई? यानी कि मैंने थर्ड पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। आई हैव नॉट मेड एनी कैश पेमेंट टू दैट पर्सन डायरेक्टली। उसके हाथ में मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने उसके बैंक में जमा करा दिया। इन द सेम मैनर इफ आई एम ए रिसिपिएंट ऑफ द मनी और दिल्ली के बाहर से किसी पार्टी ने या दिल्ली में भी मेरे बैंक अकाउंट में जाके उसने कैश जमा करा दिया, अब मैं अपनी बुक्स में कैश को कैश में एंटर कर सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव्ड दिस मनी इन कैश। फिजिकल फॉर्म में कैश मेरे पास नहीं आया। ये कैश किसके पास आया? बैंक के पास गया। आई हैव नॉट रिसीव। मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा और पार्टी को क्रेडिट करूंगा। मैं अपनी बुक्स में कैश इन हैंड को डेबिट नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव नॉट एक्चुअली रिसीव्ड एनी कैश। तो देयर इज अ जजमेंट ऑफ बैंगलोर ITAT श्री रेणुकेश्वरा राइस मिल्स 93 TTJ 912। आई एम रिपीटिंग द साइटेशन 93 TTJ 912। तो इस केस में यदि मैंने कोई किसी के बैंक में अगर पैसे जमा करा दिए या किसी पार्टी ने मेरे बैंक में अगर पैसे जमा करा दिए तो दैट विल नॉट अमाउंट टू कैश ट्रांजैक्शंस। देखिए 48(3) की एप्लीकेबिलिटी के लिए या 269T और 269SS की एप्लीकेबिलिटी के लिए देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स। वहां जो लैंग्वेज है वो कैश पेमेंट से नहीं है। वहां जो लैंग्वेज है अदरवाइज देन बाय बैंक चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, वो वर्ड है वहां, ठीक है? तो वहां पर लैंग्वेज डिफरेंट है 48(3) में भी, 269SS में भी और 269T में भी। लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस जजमेंट का सहारा लेने के बाद हम इससे भी बाहर निकल सकते हैं और इस तरह की अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग दिस 5% लिमिट, राइट? अब हमें बात समझ में आ गई। मैंने अपना कैश अकाउंट लिया, उसमें से रिसीट साइड देखी, उसका टोटल एक कागज पे लिखा, पेमेंट साइड देखी, उसका टोटल एक कागज पे लिखा, कॉन्ट्रा एंट्री हटा दी, उसमें से नेट बैलेंस निकल आया, रिसीट फ्रॉम पार्टनर्स एंड प्रोप्राइटर्स वो मैंने उसमें से हटा दी, और जो पैसा डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में गया या डायरेक्ट मैंने किसी के बैंक में जमा कराया वो मैंने हटा दिया। तब मेरे पास नेट मेरा कैश रिसीट और कैश पेमेंट का अमाउंट आ गया, और वो जो अमाउंट है वो मुझे कंपेयर करना है 5% ऑफ माई सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स। अगर वो मेरा 5% से कम है देन माई टैक्स ऑडिट लिमिट विल बी 5 करोड़, और अगर 5% से ज्यादा है देन माई टैक्स ऑडिट लिमिट विल बी 1 करोड़। एज सिंपल एज दिस, राइट? ये हमने बात की उन एसएससीज की दोज हु आर नॉट अवेलिंग 44AD, जो 44AD में नहीं जा रहे या 44AD के एलिजिबल एसएससी नहीं है। अब हम बात करते हैं उन एसएससीज की दोज हु आर एलिजिबल एसएससीज अंडर सेक्शन 44AD। अब वो कौन कौन से एसएससी हो सकते हैं? इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप, राइट? उनकी कमीशन इनकम नहीं होनी चाहिए, दे शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी, वो कोई एजेंसी बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, एंड देयर टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई देन दे आर द एसएससी हु आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 44। ठीक है? उसके इसमें 44AB में जो बॉटम में प्रोवाइजो दिया उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे सिचुएशन में योर लिमिट विल बी 2 करोड़ नॉट 1 करोड़। ठीक है? अब हमने मान लिया कि एक हमारा एसएससी है, उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है, वो किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी में एंगेज नहीं करता, उसके पास कमीशन इनकम नहीं आती, उसके पास एजेंसी इनकम नहीं आती, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और वो जो एसएससी है या तो वो इंडिविजुअल है या फिर वो
HUF है या वो पार्टनरशिप फर्म है। अगर ये सारी कंडीशंस आ गई, राइट, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपनी बुक्स का ऑडिट करा लूं और 8% या 6% से कम डिक्लेयर कर दूं, राइट। There is a deeming fiction under section 44AD which says that in case of an eligible SSC engaged in the eligible business, right, your profit shall be deemed to be 8% or 6% of your turnover. और अगर आपको उस डीमिंग फिक्शन से बाहर जाना है, हालांकि उसकी सेक्शन की ड्राफ्टिंग में देयर आर सर्टेन ड्राफ्टिंग इश्यूज, बट द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज कि अगर मुझे उस डीमिंग फिक्शन से बाहर जाना है, देन आई हैव टू गेट माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44A। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म हूं जो एलिजिबल एसएससी है और मेरी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है, 2 करोड़ रुपए एक्सीड नहीं करती, उस केस में मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो मैं 8% या 6% जैसा भी सेक्शन में लिखा है, जिस भी कंडीशन में मैं फॉल करता हूं, तो मैं वो डिक्लेयर कर दूं, तो मुझे ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं। और अगर मैं 8% या 6% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करता हूं 44AD में, तो फिर मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44AD। तो इस पूरे डिस्कशन में आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग एंड आई हैव ट्राइड टू मेक थिंग्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। और फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा देन आई विल बी रेडी टू हेल्प। एंड विद दिस नेहा, मेरे ख्याल से मैंने कहा आपका कुछ क्वेश्चन हो तो वी विल डिस्कस, अदरवाइज आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। Thank you so much, Rajiv sir, for sparing time and resolving all our members' query. We received a lot of queries in respect of this amendment, and we are really glad that your professional journey after your spiritual break has started only with CS Ansar. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली नहीं, रियली आई हैव रियली हैड इन द पास्ट आल्सो आई हैड वेरी गुड टाइम विद CS